So in the previous lecture, we have seen difference between two types of animals, which are non-chordates and chordates. Non-chordates and chordates में हमने क्या देखा? Differences देखे. What are those differences? The very first difference is non-chordates में notochord नहीं होता है, no notochord, whereas chordates have got notochord. Second difference, heart is dorsal, here heart is ventral. Then nervous system, here nervous system is ventral, here nervous system is dorsal. Then gill slits absent, gill slits present. Then posternal tail absent, posternal tail present. So there are 5 to 6 differences between non-chordates and chordates. Now non-chordates जो animals होते हैं, already we have discussed many times that they are very small, they are simple creatures, right? They are divided into 10 phyla, right? What are those phylums? Last time I am repeating now again. Phylum non-chordates जो है वो 10 phylum में divided है. What are those 10 phylum? Phylum Porifera, phylum Coelenterata, phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes, phylum Aschelminthes, phylum Annelida, phylum Arthropoda, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, and phylum Hemichordata. So these are the 10 phylums. We have studied all 10 phylums in detail. Now we will move on to chordates. अभी हमारा non-chordates का study हो गया है. Now we are going to study chordates. See, chordates को मैंने क्या लिखा है? Chordates are also called as phylum Chordata. Okay? Chordates जो है उनके लिए second name is phylum Chordata. Now this phylum Chordata means what? Animals whose embryo is having notochord, right? जिनमें notochord होता है, those animals belong to phylum Chordata. Now जिनमें notochord नहीं होता है वो 10 types के हैं, right? 10 types के phylum में divided है. तो जिनमें अभी notochord है वो भी तो सारे same नहीं है ना. तो there are different animals on earth which have notochord present, right? So जिनमें notochord होता है ऐसे organism को हम chordates बोलेंगे और we will call them phylum Chordata. So phylum Chordata is again divided into 3 subphylums. Okay, phylum Chordata में जो organisms जो animals आते हैं वो सारे same नहीं है, वो भी different types के हैं. तो 3 main types of phylum Chordata are subphylum. I am writing now subphylum Urochordata. Okay, Urochordata or Tunicata. Okay, subphylum Urochordata or Tunicata. Phylum Chordata is divided into 3 subphylum. First subphylum is Urochordata or Tunicata. Second subphylum is, see, I am talking about subphylum. Phylum Chordata के subphylums की बात चल रही है. Second subphylum is Cephalochordata. Cephalochordata या फिर Cephalochordates भी बोल सकते हो. And third subphylum is Vertebrata. Okay, Vertebrata. So phylum Chordata या फिर chordates again divided into 3 subphylums. 1 subphylum Urochordata or Tunicata, 2 subphylum Cephalochordata, and 3 subphylum Vertebrata. So phylum Chordata के भी सारे animals same नहीं है, उनकी भी 3 categories है. What are 3 categories? Subphylum Urochordata or Tunicata, subphylum Cephalochordata, and subphylum Vertebrata. Now we will see why phylum Chordata is divided into 3 subphylums. क्यों phylum Chordata को 3 subphylum में divide किया है? क्योंकि ये जो animals belonging to these subphylum are different, animals belonging to this subphylum are very different,
and animals belonging to vertebrata are different. That is why we have divided phylum Chordata into 3 groups or 3 subphylums. Okay, so let us study these subphylum in detail now. Now we know कि phylum Chordata या फिर chordates is divided into 3 groups. Which are those 3 groups? Those 3 groups are called as subphylum, right? First is subphylum Urochordata या फिर इसी को बोलते हैं ट्यूनिकैटा, ट्यूनिकैटा, ठीक है. एंड नेक्स्ट सबफाइलम इज Cephalochordata and third subphylum is Vertebrata. Now ये जो तीनों सबफाइलम्स है 1, 2, 3, these 3 सबफाइलम बिलोंग टू फाइलम Chordata. फाइलम Chordata मतलब नोटोकॉर्ड तीनों में भी प्रेजेंट है. इसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और ये ऑर्गेनिज्म में भी नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बिकॉज ये जो नॉन कॉर्डेट्स है इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बट कॉर्डेट्स ऑल ऑफ देम हैव नोटोकॉर्ड, राइट. सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ओके, सो व्हाई 3 ग्रुप्स देन? फिर 3 टाइप्स क्यों इसके बने? ये जो फाइलम Chordata है, व्हाई दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइलम? सबफाइलम Urochordata, सबफाइलम Cephalochordata, सबफाइलम Vertebrata. बिकॉज नोटोकॉर्ड तो तीनों भी इसमें है ना, तीनों भी सबफाइलम्स में है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है. नोटोकॉर्ड जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. हियर इन सबफाइलम Urochordata, सबफाइलम Urochordata या फिर ट्यूनिकैटा में ये जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन, ये लार्वा है, लार्वा, दिस इज लार्वा. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट हियर, नोटोकॉर्ड is present in larva tail, larval tail, यानी सिर्फ टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड. ओके, whereas here नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. Cephalochordata जो एनिमल के टाइप्स है उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट सपोज दिस इज एनिमल, ये लार्वा है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. ओके, सो ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, एंड इट इज, यहाँ पे इट इज प्रेजेंट ओनली इन टेल, टेल पार्ट. यहाँ पे इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल, थ्रू आउट द बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. देखो, हेड टू टेल, हेड टू टेल. दैट इज वाई इनके 2 कैटेगरीज बन गई. एक कैटेगरी ऐसी जिनमें नोटोकॉर्ड तो है बट कहाँ पे है? सिर्फ लार्वा के टेल में है. सेकेंड कैटेगरी नोटोकॉर्ड है बट लार्वा, लार्वा में फ्रॉम हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कंप्लीट फुल है नोटोकॉर्ड. अब थर्ड कैटेगरी देखो, वर्टिब्रेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है ना. अब यहाँ पे हेड टू टेल है, इनमें भी हेड टू टेल होता है. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, सपोज ये एनिमल है, लार्वा है, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. ओके, दिस इज नोटोकॉर्ड. बट इनमें, इसमें और इसमें, ये सब फाइलम में और ये सब फाइलम में नोटोकॉर्ड एक सॉफ्ट मसल से बना हुआ होता है. बट हियर इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड तो है बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड जो है वो अभी सॉफ्ट नहीं है, वो अभी बोनी बन गया है, बोनी, बोन्स का बन गया है. यहाँ पे मसल्स का है. ओके, यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम.
वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है बैकबोन, बैकबोन। तो ये जो कैटेगरी है वर्टिब्रेटा, इनमें नोटोकॉर्ड सॉफ्ट नहीं है। नोटोकॉर्ड यहाँ पे इनमें नोटोकॉर्ड इज सॉफ्ट, इट इज मेड बाय मसल्स, बट इन द कैटेगरी वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय बोनी। ये कैसे बन गया? बोनी बन गया, या फिर बोनी नहीं तो फिर कैसे? कार्टिलेज का। ओके, मतलब नोटोकॉर्ड हार्ड बन गया है एंड उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अभी यहाँ पे हम नोटोकॉर्ड नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट से नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अभी नोटोकॉर्ड बोनी बन गया है एंड वी विल से वर्टिब्रल कॉलम, या फिर क्या बोलोगे? बैकबोन, जैसे हमें होता है बैकबोन, वी आर हैविंग बैकबोन। सो फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा का स्पेशल फीचर है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। बट इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वा के टेल में सिर्फ प्रेजेंट है, दिस कैटेगरी, दिस एनिमल बिलोंग टू कैटेगरी यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा। अगर नोटोकॉर्ड पूरा हेड टू टेल प्रेजेंट है लार्वा के, तो दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज सिफेलोकॉर्डेटा। Okay, head to tail, cephalochordata. And if notochord is replaced by bony or cartilaginous vertebral column, अभी notochord bone का बन गया है, hard बन गया है, पहले notochord was soft, अब अगर notochord bony बन गया है then it is not called as notochord, अभी उसको क्या बोलेंगे? vertebral column बोलेंगे। तो notochord तो है, बट notochord कैसे बन गया है? bony बन गया है। ओके, so this category is called as vertebrata, vertebral column, vertebrata. So phylum chordata is again divided into three subphylums: Urochordata, notochord in larval tail; Cephalochordata, notochord from head to tail; and vertebrata. Notochord is replaced by bony cartilaginous vertebral column. Okay, so three subphylums you have to remember. Now one thing I want to explain. See, one sentence you might be coming across, एक give reason पूछेंगे। All vertebrates are chordates. Okay, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Is this sentence right? All vertebrates are chordates. Is this sentence right? All vertebrates are chordates? Yes, all vertebrates are chordates. All vertebrates belong to chordates, but all chordates are not vertebrates. Is it true? All chordates are not vertebrates? बराबर है। all chordates are not vertebrates. vertebrates अलग है। ओके, vertebrates में नोटोकॉर्ड बोनी होता है और इनमें नोटोकॉर्ड सॉफ्ट होता है। दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज ट्रू एंड गिव रीजन में आता है all vertebrates are chordates. all vertebrates, जितने भी vertebrates होंगे वो सारे क्या है? chordates है, राइट। बट all chordates are not vertebrates, क्योंकि chordates के तीन टाइप्स है, सिर्फ एक टाइप नहीं है, vertebrates टाइप नहीं है, तीन टाइप है। यूरोकॉर्डेटा भी है, cephalochordata. That is why this sentence is very true. All vertebrates are chordates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All chordates are not vertebrates. So I hope what is vertebrates is clear to you. Vertebrates means those animals having notochord, but notochord is replaced by bony cartilaginous vertebral column, मतलब backbone. Animals having backbone, इतना भी याद रख सकते हो। और इनमें बैकबोन है, बट वो कैसा है? बोनी नहीं है, सॉफ्ट है। और यहाँ पे बैकबोन कहाँ है? सिर्फ टेल में है। ओके, नोटोकॉर्ड बोलो या फिर बैकबोन बोलो। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब फाइलम्स इन फाइलम कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, टेल में है नोटोकॉर्ड; सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल; एंड वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, बट इट इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस vertebral column
or you can say backbone. Notochord is replaced by backbone. Now we will see examples of. Now यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आर एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम. ओके, मेनली ये जो एनिमल्स होते हैं, ये दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक, मराइन. नाउ सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रेकियोस्टोमा, और इसी को बोलते हैं एम्फियोक्सस और लैंसेलेट. ओके, दीज आर ऑल्सो मराइन एनिमल्स, ओशन में रहते हैं ये एनिमल्स. एंड वर्टिब्रेटा के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. वर्टिब्रेट्स आर मोर डोमिनेंट ऑन अर्थ, बहुत सारे होते हैं वर्टिब्रेट्स, तो इसके भी हम टाइप्स देखने वाले हैं. बट ये जो दो छोटे सब फाइलम्स है, इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. ओके, ये याद रखना है, प्रोटोकॉर्डेट्स. दिस सिफेलोकॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. व्हाई सो? इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटो का मतलब होता है पहले जो कॉर्डेट्स आए, वो पहले अर्थ पे ये कॉर्डेट्स आए, बाद में फिर उनका और इवोल्यूशन हुआ, फिर ये कॉर्डेट्स आए, एंड बाद में आफ्टर इवोल्यूशन वर्टिब्रेटा के. तो सबसे पहले इन ये एनिमल्स के बाद ये जो 10 फाइलम्स देखे, इनके बाद अर्थ पे इनका बर्थ हुआ, फिर इनमें इवोल्यूशन हुआ, सिफेलोकॉर्डेटा आया, फिर इसमें इवोल्यूशन होके वर्टिब्रेटा आया. तो क्योंकि ये सबसे पहले आए हैं यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, इसीलिए प्रोटो मतलब पहले, फर्स्ट. प्रोटोकॉर्डेट्स, दे आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. इनको भी सिफेलोकॉर्डेटा को भी क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स, बिकॉज दे फर्स्ट केम ऑन अर्थ. दे केम बिफोर वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ. दैट इज व्हाई यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. व्हाई? बिकॉज they first came as a living being on earth. बाद में वर्टिब्रेटा का इवोल्यूशन हुआ. नाउ ये जो यूरोकॉर्डेटा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, ये याद रखना है. एंड वाटर प्रोटोकॉर्डेट्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो वाटर प्रोटोकॉर्डेट्स कौन से है? यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स? बिकॉज दे केम फर्स्ट ऑन अर्थ. ओके, नाउ come to this vertebrata. There are 3 examples of Urochordata, and there is one example given in book of Cephalochordata. But vertebrata के ऐसे examples नहीं दिए, because vertebrata बहुत सारे examples है. vertebrata के बहुत सारे actually types है, अभी हम लोग देखेंगे. But उसके पहले उनके कुछ common features देख लेते हैं. Let us see few features of vertebrata. vertebrata जो animals है, इनमें you will find heart. हार्ट तो रहेगा ना, एंड हार्ट तो इनमें भी है. बट दिस साइड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट्स. हाउ इज हार्ट हियर? हार्ट इज डॉर्सल, नो? नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है, और कॉर्डेट्स में कैसे होता है? वेंट्रल होता है. तो हार्ट वेंट्रल है. ओके, और हार्ट में कोई एनिमल्स में देयर विल बी 2 चेम्बर्स. सपोज ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, तो 2 चेम्बर्स रहेंगे. कभी you will find 3 chambers in heart, and many a times you will find 4 chambers in heart. 2 chamber, 3 chamber and 4 chamber. तो कुछ एनिमल्स वर्टिब्रेटा में ऐसे होते हैं जिनमें 2 chambered हार्ट होता है. हार्ट के 2 चेम्बर्स होते हैं. some animals will have 3 chambers and some animals will have 4 chambers in the heart. So this was about the heart. और obviously heart ventral है, हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं. Then about the kidney. ये जितने भी अभी हम लोग आगे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, वर्टिब्रेटा के टाइप्स देखने वाले हैं, सब में किडनी रहेगा. ऑल कंपल्सरी किडनी. किडनी इज फॉर एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स throwing out of waste. कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट. एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो मीन्स वाटर. वाटर का रेगुलेशन. हमारे बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए वो ऑस्मो रेगुलेशन से होता है. वो कौन करता है? किडनी. सो किडनी हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. तो हार्ट, फर्स्ट थिंग इज हार्ट जो वेंट्रल है, कभी 2 चेम्बर रहेगा, कभी 3 चेम्बर्स, कभी कोई एनिमल्स में 4 चेम्बर्स रहेगा. किडनी इज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. सारे जितने भी अभी हम टाइप देखेंगे, किडनी विल बी देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिम्स. लिम्स या बोलो या अपेंडेजेस बोलो या फिर हाथ पैर बोलो.
हाथ और पैर है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें लिम्स है, हाथ पैर है नहीं तो फिन्स है, और पैर में है मतलब राइट एंड लेफ्ट, ओके, पैर में है तो हाथ पैर या फिर फिन्स रहेंगे. सो वी विल सी द फीचर्स लेटर ऑन. सो किडनी इज देयर, और लिम्स के पैर है मतलब हाथ पैर है, पैर पैर मतलब राइट एंड लेफ्ट. सो वी ह्यूमन बींग्स कम अंडर दिस वर्टिब्रेटा. बट ये जो वर्टिब्रेटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, इसके भी बहुत सारे टाइप्स है. एंड देन वी आर इन द फाइनल लिस्ट में हम लोग मोस्ट एडवांस एनिमल में. अभी तक हमने जितने ये ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स देखे, ये नॉन कॉर्डेट जो हमने स्टडी किए, दे वर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म. फिर हम कॉर्डेट्स की तरफ मूव हुए, तो ये जो यूरोकॉर्डेटा इट इज ऑल्सो सिंपल ऑर्गेनिज्म. सिफेलोकॉर्डेटा उससे एडवांस है, वर्टिब्रेट्स उससे भी एडवांस. अब ये जो वर्टिब्रेट्स है इनके बहुत सारे टाइप्स है, एंड वी विल सी फ्रॉम लेस एडवांस टू मोर एडवांस एनिमल्स इन दिस वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेटा. सो फाइनली आई एम रिपीटिंग, कॉर्डेट जो है इसका तो we all know 10 phylums. Non-chordates is divided into 10 phylums. We have studied them. But chordates या फिर phylum chordata is divided into 3 subphylums. Why 3 subphylums? एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें larval tail में notochord है, that is called as Urochordata, Tunicata. If the notochord is present from head to tail, then category is called Cephalochordata. And if notochord is replaced by vertebral column made up of bone, then the category is subphylum is Vertebrata. So 3 subphylums: Urochordata or Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata. Urochordata and Cephalochordata के बारे में one special feature is that they are also called as protochordates because they came first. Urochordata के example Ascidia, Salpa, Doliolum. Cephalochordata एग्जाम्पल ब्रेकियोस्टोमा, इसी को बोलते हैं एम्फियोक्सस या फिर लैंसेलेट. एंड वर्टिब्रेटा के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे टाइप्स है, दैट वी विल सी नाउ. नाउ कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन सी. कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक, नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड इज देयर जो डॉर्सल है, पोस्ट एनल टेल है, एंड गिल स्लिट्स आर देयर. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. नाउ कॉर्डेटा के 3 सबफाइलम्स, जो यूरोकॉर्डेटा है उसका एग्जांपल, लेट अस सी एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, एंड दैट इज एसिडिया विच इज मराइन एनिमल. ये एक एक्वेटिक एनिमल है. यूरोकॉर्डेटा का हमने एग्जांपल देखा है, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, फर्स्ट सबफाइलम ऑफ कॉर्डेटा.